Okay, so limits, what we have done in limits is we have seen one thing is called left hand limit at a point and right hand limit. We are discussing the limit of a function at a particular point. So if a is a point, the left hand limit of the function is written as limit x tends to a minus f of x. We always find the limit of the function, that is fx, and at which point we are finding the limit? We are finding at point a. So we can either approach it from left hand side or right hand side. There are two ways to approach a point because we are dealing it in real numbers and real line. So there are only two ways that you can approach a point, from left hand side or right hand side. So whenever you are approaching it from the left hand side, we put minus sign here. So it means that you're approaching a from the left hand side, and then you see where is your function tending to. Function किस तरफ जा रहा है. And similarly, we have seen the right hand limit of the function at point A, that is limit x tends to a plus f of x, right? So limit of a function at a exists, we say it exists. मतलब left hand limit is equals to right hand limit जब भी आ जाएगी, both the value coincides are same, then we say the limit of the function exists. This means, geometrically it means that the function behavior around that point is same. That means right hand side और left hand side दोनों ही side से function एक ही तरफ tend कर रहा है, उसका behavior same आ रहा है. So then we say the limit of the function at a exists. And if it does not exist at that point, that means left hand limit और right hand limit अलग अलग आ रही हैं. There may be jump in the function, या फिर हमारे पास ग्राफ स्मूथ नहीं आएगा, थोड़ा सा ब्रेक आ जाएगा या जंप आ जाएगा. So then we say the limit of the function does not exist. This is basically what we have seen up till now. And also, how do we write if the limit exists? So as x is approaching a, that means x is tending a from the left hand side and right hand side, and your function is tending to L. दोनों ही साइड से फंक्शन किस तरफ जा रहा है? L की तरफ जा रहा है. Then we say L is the limit of the function, and we write it as limit x tends to a, f of x is equals to L. When both the limit exists, left hand and right hand, then we do not put minus or plus. We can directly write it as limit x tends to a, f of x is equals to L. And this can be broken down as this also. Right, this one we have discussed. And let's see 2-3 graph of the function what I have given you in the homework. So you would know that. Okay. See, this was your homework. Let's say you have to find, this is the question. Limit x tends to 2 f of x. Right, this graph is already given to you. So last time we have only seen if graphs are given to you, then graphically how can we say at a point whether limit exists or not. So we will just see, we'll come near to the point, we'll approach it from the left hand side and right hand side, from both the sides, and then we see where is our function tending to. And if it is tending to the same point, we say the limit exists. And if it is not tending to the same point, we say the limit does not exist. Like here, they're asking you if you approach 2, limit x tends to 2 f of x, then what is the limit of fx? Where is fx tending to? So if you see from the graph, this is point 2, right? And if you approach 2 from the left hand side, if you're coming very close to 2 from the left hand side, you see the graph of the function. It is tending to 3. इस point की तरफ ही जा रहा है. Function means graph जहाँ जहाँ form हुआ है उस point के around. तो इस point के around left hand side से अगर मैं देखूँ, so it is 2.99999. मतलब it is approaching to 3. जा रहा है, fx is tending to 3. And similarly, if you approach 2 from the right hand side, very close to 2 from the right hand side, then you can see it is 3.00001, मतलब very close to 3. So if we see where is fx tending to, so it is going very close to 3 from the left hand side also and from the right hand side also. So if I mark it as 3, so 3 is the limit of the function.
Some of you have got this question wrong. So we have discussed it. Let me show you one more graph and you can answer me. Okay, let's say this is the question. Who wants to answer this? Limit x tends to 2 plus f of x. Now, since they're asking you 2 plus, that means you're approaching 2 only from the right hand side. They're not asking you what is the limit of the function at 2. They're asking you what is the limit of the function at point 2 when you're approaching it from the right hand side. So what do you think? You can raise your hand and answer me. Anybody else? So 2 point is this. You have to approach it from the right hand side. That means you have to approach, you have to come near to from this side, and then you will see the graph of the function. Where is it? Will you see fx from here or from this graph? Who wants to answer this? Yes, Adya. Ma'am, the limit will be 5. I Limit think. will be 5. Okay, right, correct. So when you approach 2 from the right hand side, that means you're coming close to 2 from here. Now very very close to 2, you see where is your function. Function क्योंकि left जब हम right hand side से approach करें तो function ये graph attain कर रहा है, right? So we will see कि अगर हम 3 पर है तो ये है, 2.5 पर यहाँ पर है, और फिर 2 के पास जाओगे तो that means you are here. And at 2 you can see though function is not attaining value at 2 here, 5 नहीं आ रही है, but it is very very close to 5. So if you see from the right hand side, the limit of the function should be 5, and 5 is the correct answer. And if I ask you what is the value of the function at 2, if you can answer in the same graph, what is the value of the function at 2? I'm not asking the limit, I'm asking the value of the function at 2. Can anybody answer? Yes, Arunima? Ma'am, -1. Good. So at 2, if you see, when I ask you what is the value of the function, you will have to see the graph exactly at that point. What is the point attained by fx? So at this point too, fx is taking value this. You can see this is filled circle and this is hollow circle. Whenever we make a hollow circle, that means the value is not attained there. At 2, function is not taking this value, but it is taking this value. So f of 2 is equals to -1. And anybody can answer what is left hand limit at 2? What is the left hand limit at 2? Yes, Nishta? -1. Right. So when you're approaching 2 from the left hand side, you're coming closer to 2 from here. So you will see this graph. And when you're very, very close to 2, you can see you are exactly at, you're approaching, your function is approaching this point, which is -1. So since left hand limit is -1, right hand limit is 5, value of the function is 2, you can see there is a huge jump in the graph. So whenever there is going to be a jump at a point in the graph, at that point the limit will not exist. So limit यहाँ पर exist नहीं कर रही है, right? So there were other questions. Now you can try, although we are going to discuss many other graph in today's class also. So if you find it difficult, you can clear your doubt today. So let's begin. So we know how to write left hand limit, how to write right hand limit, and also if both exist, then how to write it in combined form. This is how you write it. So let's see a few graphical questions first. So they're asking you check if the limit of the function exists. Okay, so the here function is already given to you. So I will make the graph of the function first, and then I will also write it mathematically so that you're clear how to do it graphically and also mathematically. So like here you can see the function is taking value x plus 2 when x is not equals to 1. So how do we read this graph? Let's go through it once again, though we have done it in functions also. But
let's do it again. So when x is not equals to 1, so whenever you say x is not equals to 1, it means x is taking value left of 1 and at the right of 1, but at exactly 1 it is not taking value by this function, but at x is equals to 1 the function is taking value 0. So if I have to plot this, so what I can do, I can take few values of x and then I can start plotting it. So like I have taken here, when x is equals to 1, since it is already given it is taking value 0, let's first mark this. So x is equals to 1 is this and function is taking value 0. That means this is our point. So I have marked a filled circle, right? Now let's see what will happen to the left of 1 and to the right of 1, because we are going to plot this graph. ये plot कर रहे हैं हम fx के लिए. So now let's see. When x is not equals to 1, let's say when x is equals to 0, so then function, if you see, this is my function for x is equals to 0. So for x is equals to 0, it will take value 0 plus 2, which comes out as 2. So if I mark it here, at 0 it is taking value 2. So this is my point, right? Now let's see what will happen when x is 0.5. So again for 0.5 I will refer to this function because it is not equals to 1, and if you substitute here 0.5 plus 2 it becomes 2.5. So that means when x is 0.5 your value is 2.5. You're somewhere here. So I have marked a filled circle again. Then 2 point, when you're taking x as 0.9, very close to 1, that means 0.9, somewhere here, the value of the function will become 2.9. That means somewhere very, very close to 3, it will be here, right? Again a filled circle. So I have many points on the right hand side of 0. इस side तो मुझे graph मिल गया. Let's take some negative values also. So let's say if I take -1, although I have not written here, so let's just take one more value. So you know if how is the graph extending to the left of 0 or on the negative side. So when x is, let's say, -1, so if I put here in the function, so -1 plus 2 makes it 1, right? So -1 के लिए 1 value आ रही है, so you are somewhere here. So this is how my graph of the function looks like. But you must notice here that when you're taking the value x as 1, the function value is defined at 0 and not on this graph. ये जो green dotted मैं बना रही हूँ इधर नहीं defined but इस point पर defined है. So let's say एक point value लेते हैं हम 1 के right hand side में भी, so that we can join it and see. So 1 के right hand side में, let's say if I have taken 1.1, तो 1.1 plus 2 makes it 3.1, right? So आप अगर इधर plot करोगे, so this comes out here 3.1. Now if I join the graph, let's say ये मैंने join किया graph. Now do notice here that at point 1, क्योंकि फंक्शन ने ग्राफ पर वैल्यू नहीं ली है, सो डेफिनेटली इस पॉइंट पर यहाँ पर क्या होने वाला है, देयर इज गोइंग टू बी अ हॉलो सर्कल. दैट मीन्स एट पॉइंट 1 फंक्शन ग्राफ पर नहीं डिफाइंड होकर इस पिंक पॉइंट पर डिफाइंड है. अदरवाइज ग्राफ इज मूविंग स्मूथली और कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो दिस इज माई ग्राफ ऑफ द फंक्शन. This is how you will draw fx. Is this graph clear? We have already done these types of graphs in functions. Or is there any doubt? Yes. The graph is clear to Yes, ma'am. Okay. Yes. Now what is the question given to you is you have to check the limit of the function at this point. We are dealing with the limit at point x is equals to 1. तो अब मैं सिर्फ सीधा ग्राफ देखकर इसको आंसर कर सकती हूँ whether my limit exists or not at x is equals to 1. So what we'll do, we will approach 1 from the left hand side. So you will go very very close to 1 from the left hand side. इस तरफ से जा रहे हैं. So when you are going from the left hand side, graph of the function is this.
So the function is tending to this point. And what is this point? This point is somewhere very close to 3, right? So that means from the left hand limit, from the left hand side, if I approach 1, limit of the function fx, when you're approaching 1 from the left hand side, it is tending to 3. Also, you can write this first as this, that you are approaching 1 from the left hand side and your function is tending to 3. It is approaching to 3. So in totality, this can be written as left hand limit, which is this, right? Now let's see what is the right hand limit. So when I'm approaching 1 from the right hand side, so we can see the graph is here. So you will be approaching fx. You will see the value of fx from here. So when x is tending to 1 plus, you're approaching 1 from the right hand side, we can see the function is approaching this point, and this is again 3. So fx is tending to 3. fx 3 की तरफ जा रहा है. So again we can write it as limit of the function fx when you are approaching 1 from the right hand side, it is also coming out as 3. So this means what? This means that left hand limit and right hand limit both are equal, so limit of the function exists. So you can write it together that limit x tends to 1, f of x is equals to 3, and finally you can write limit of the function exists. Right? So for this graph, we saw that the limit of the function exists. Again आपने देखा, आपने ग्राफिकली ही किया ये क्वेश्चन, ग्राफ बना लिया हमने, एंड देन फिर उस पॉइंट के अराउंड हमने देख लिया हाउ इज द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन, एंड वी गॉट द आंसर, राइट? एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, एंड देन वी विल लर्न टुडे हाउ टू फाइंड द लिमिट विदाउट नोइंग द ग्राफ, क्योंकि हमेशा फंक्शन बहुत सिंपल फंक्शंस नहीं होते हैं, तो अगर हम उन्हें प्लॉट नहीं कर सकते हैं इजीली, सो देन हाउ कैन वी फाइंड आउट द लिमिट, वो भी आज हम सीखेंगे. So this is clear to everyone? Yes, Yes? ma'am. Yes. Okay. So if this is clear, let's do this question. I want all of you to try this. The question says fx is equals to 3. At x is equals to 2, you have to see whether the limit exists or not. The function is given as fx is equals to 3, which is a constant function because it is taking a constant value. And they're asking you, find if the limit exists at x is equals to 2 or not. So first try and draw the graph of this function, and then we can see. How will the graph look like? Can anybody tell me? Because we have already done functions, we have already discussed constant functions. Yes, Sukmani? Ma'am, It will be a straight line parallel to the x-axis. It will be a straight line parallel to the x-axis. Good. So whenever we are discussing graph of a constant function, it is always a horizontal line. We have done this. तो एक तो चीज क्लियर है, horizontal line होने वाली है, but आप लोगों के लिए फिर से अगर किसी को क्लियर नहीं है, I'm going to take few points and then I'll plot it. So let's see. If x is 0, then the value of the function is 3. When x is 1, the value of the function is 3. 1.53. हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन 3 ही वैल्यू ले रहा है because fx is equals to 3 defined है. Now let's see if you plot it. When x is 0, it is taking value 3. When it is 1, value 3. When it is 2, 1.5, 3, 1.93, 2 per 3. सारे points पर value function की 3 ही है. So what I can do, I can just join all the points, and this is how my graph looks like. This is your fx is equals to 3. So you have a horizontal line at that point 3. This is how you have to plot the constant functions graph. तो ये points लेने की जरूरत नहीं होती, आप direct plot कर सकते हो. Now let's come to the question. अब question में क्या पूछा गया है? You have to check the limit at point 2. So this is the point जिस पर आप limit check कर रहे हो.
What will be the limit of the function at this point? Raise your hand and tell me. Just by looking at the graph, you can see left hand limit and right hand limit, and you can tell me. Yes, Maitri? Ma'am, it will be 3. It will be 3. Good. So how can we see it from the graph? When I am approaching 2 from the left hand side. So approaching 2 from the left hand side, the function graph is this. So function is tending to this point, and this point is very, very close to 3. The graph is always taking the same value. So no matter किस point से approach कर रहे हैं, it is still going towards 3. And when you're approaching 2 from the right hand side, then I can see इसी point की तरफ आ रहे हैं और ये point भी 3 ही है. So right hand is also 3. So if you see limit x tends to 2 minus f of x, it is 3, and this is also 3. So I can say left hand limit is equals to right hand limit. That means limit x tends to f of x is equals to 3. So limit of the function exists, right? Now see, the question is complete, but let's see one more thing. When there was a little break at that point, जिस पर भी हम check कर रहे थे previous question में, जैसे हमने 1 point पर check किया कि limit exist कर रही है नहीं, इस point पर function की value यहाँ पर defined नहीं है, 1 point पर इधर defined है 0 पर, but still the limit exists, right? क्योंकि left side से और right hand side से वो एक ही तरफ आ रहा है. And in this graph, if you see, the value of the function at 2 इधर ही defined है, but हम लोगों को उस value से कुछ नहीं करना होता. जब भी हम limit देखते हैं, we just see कि function किस तरफ जा रहा है. तो इस graph में भी हम देख सकते हैं left और right hand side से function एक ही तरफ जा रहा है. तो यहाँ पर भी limit exist कर रही है. So what I mean to say is, even there is a small break in the graph. अगर एक छोटा break है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Limit तब भी exist कर सकती है. There are chances कि limit exist कर जाए. But if there is a huge jump, अगर दिख रहा है और उस डाल रहे हो, तो वो exist जरूर नहीं करेगी. But इन दोनों cases में आप देख रहे हो, the limit exists, right? Let's do one more question graphically. एक और करके देखते हैं. This is the graph. This is the function given to you. आप इसको plot करो, and then we'll see the limit of the function at x is equals to 0. करो plot अपने आप. ओके, किसी ने प्लॉट किया है? यस, किसी ने प्लॉट किया है? कोई बता सकता है कि ग्राफ कैसा दिख? किया तो है, लेकिन वो पता नहीं चलता कैसे करे. मतलब 2 से वो एक लाइन वैसे और -2 से एक लाइन नीचे. Is there a jump in the graph? यस मैम. ओके, राइट. इस ग्राफ को अगर आप प्लॉट करोगे तो मैं आपको इधर फिर से एक बार बता देती हूँ. लेट्स से पहले हम इसको प्लॉट कर लेते हैं. व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, तो जब x 0 है तो फंक्शन वैल्यू ले रहा है 0. तो सबसे पहले मैंने इसको प्लॉट किया. x is 0, फंक्शन वैल्यू इज 0, दिस इज माय पॉइंट.
तो ये मैंने प्लॉट कर दिया. Now let's come to x less than 0. So when x is less than 0, तो फंक्शन वैल्यू लेगा इससे x minus 2 से. So whatever value of x I am taking, I'll substitute here. So let's see. अगर मैं लेती हूँ -0.5. So if I take -0.5 इधर पुट करेंगे, it becomes -2.5, right? अब इसको प्लॉट कर लेते हैं. So -0.5 becomes -2.5. So somewhere here, बिहेव कर रहा है. सो -0.5 के लिए यहाँ था. सो -0.2 के लिए लिख लेती हूँ, -2.2 आ जाएगा, राइट? और पास देख लेती हूँ 0 के. -0.000 अगर 1 देखते हैं तो इट बिकम्स -2.000. तो ये इधर आपके पास वेरी वेरी क्लोज इधर आ जाएगा, राइट? बट जैसे ही आप देखोगे, जैसे ही आप आओगे इस पॉइंट पर 0 पर, तो फंक्शन यहाँ वैल्यू नहीं ले रहा है. यहाँ तक अभी स्ट्रेट लाइन आ रही है क्योंकि डॉट्स यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं. बट जैसे ही मैं इधर पहुंचूंगी इस y एक्सिस पर, तो यहाँ पर फंक्शन ने वैल्यू इधर ले लिया है 0 पर, ना कि यहाँ पर. सो आई हैव टू मार्क अ हॉलो सर्कल. तो यहाँ पर मैं एक हॉलो सर्कल बना देती हूँ. एंड अदर देन दैट, अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे तो ये आपके पास ऐसी कोई लाइन आ रही है. ऐसा ही दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में सबका ग्राफ, right? And similarly, Yes, if you ma'am. draw, yeah, and similarly, if you draw it for the right hand side, let's say this, when x is greater than 0, x plus 2 से value ले रहा है. So I can take any value here, but my concern is very close to 0 कैसा behavior है, तो उधर जरूर मैं कुछ points ले लूंगी, right? क्योंकि आप देख रहे हो 0 पर यहाँ defined है और यहाँ पर hollow circle आया है, so obviously यहाँ पर जो behavior है कुछ अलग आ रहा है. अदरवाइज और सारे पॉइंट्स पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है. सो लेट्स सी, अगर मैं 1 ले लेती हूँ, x ग्रेटर दैन 0 में 1 हमने पॉइंट लिया, तो इट बिकम्स 3. सो इट विल बी समवेयर हियर, राइट? देन इसके पास जाते हैं 0.5 पर. अगर आप देखोगे तो 0.5 प्लस 2 इट बिकम्स 2.5 समवेयर हियर. देन अगर 0.1 लेंगे तो इट बिकम्स 2.1. 0.1 प्लस 2 2.1. अगर 0.000001 लेंगे तो 2.00001, वेरी वेरी क्लोज टू 2. बट जैसे ही आप इस पॉइंट पर आओगे 0 लोगे तो आप फिर से देख सकते हो वैल्यू यहाँ डिफाइंड है और यहाँ नहीं. सो यू विल मार्क अ हॉलो सर्कल एंड देन यू कैन जॉइन दिस. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन. ये आपको ग्राफ दिखेगा. बताओ सबके पास ये आ रहा है? ऐसा ही ग्राफ मिला है सबको? Yes, ma'am. Right. Yes, ma'am. So now let's see what will be the limit of the function. Now the question is very simple. हमें पूछा गया है 0 पर पता करना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है. So you can raise your hand and tell me whether the limit exists or not. What do you think? Anybody raise your hand and tell me. मैम बिकॉज पहले तो मैम उन दोनों पे मैम 0 पे कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है मैम, बिकॉज वो 2 और -2 मैम दोनों डिफाइंड वैल्यू नहीं है उन पे मैम. हॉलो सर्कल है एंड मैम वो दोनों वैल्यूज आ रही हैं वाई एक्सिस पे, दो वैल्यूज नहीं आ सकती. एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है आरुषि. आंसर करेक्ट है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बट एक्सप्लेनेशन बिल्कुल रॉन्ग है. तो एक बार देखते हैं. ओके, सुखमनी. यस सुखमनी. Ma'am, the limit does not exist. यस, व्हाई? लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए LHL और RHL इक्वल होने चाहिए, पर यहाँ पे LHL इज -2 एंड RHL इज 2 एंड When you यहाँ are पे LHL when you are approaching 0 from the left hand side, you are saying the limit is coming out as
-2. -2, and from the right hand side the limit is coming out as 2. 2, right? Okay, अब ध्यान से सुनो एक्सप्लेनेशन। आपने कहा आरुषि कि वहां पर एक वैल्यू डिफाइन नहीं है। पहली चीज तो वैल्यू लिमिट के केस में मैटर नहीं करता है कि उस पॉइंट पर क्या वैल्यू अचीव हो रही है। यू कैन सी द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0 एट 0, राइट? तो यहाँ पर 2 आ रही है और -2, दो वैल्यूज नहीं ले सकता फंक्शन, ये नहीं हो रहा है। अगर आप देखोगे 0 पर फंक्शन एक ही वैल्यू ले रहा है, वो 0 ही वैल्यू ले रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप इस 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो तो फंक्शन किस तरफ जा रहा है। तो आपको बोलना है कि अगर 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया है तो फंक्शन आ रहा है -2 की तरफ, ये आया है आपके पास। एंड जब 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन आ रहा है 2 की तरफ, जो कि ये है। और दोनों ही साइड से अगर मैं देखूं तो फंक्शन दो अलग वैल्यूज ले रहा है, मतलब फंक्शन दो अलग तरफ जा रहा है। यहां से -2 की तरफ आ रहा है, यहां से 2 की तरफ आ रहा है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम नहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऑल्सो अगर ग्राफिकली आप बोलना चाहो कि लिमिट क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रही है, आप देख सकते हो देयर इज अ ह्यूज जंप एट दिस पॉइंट। तो ह्यूज जंप जब भी होता है तो उसका यही मतलब है कि उधर लेफ्ट हैंड वैल्यू और राइट हैंड वैल्यू में डिफरेंस आने वाला है, अगर उस स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहे हैं तो। अदरवाइज इफ यू टेक हियर, अगर 2 पर चेक करने के लिए मैं बोलूं तो यह फंक्शन इधर से भी इस तरफ आ रहा है, इधर से भी इस तरफ आ रहा है, तो एग्जिस्ट कर जाएगी। बट इस पॉइंट पर अगर मुझे चेक करना है, सो आई कैन सी इस पॉइंट पर देयर इज अ ह्यूज जंप एंड द लिमिट इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, सो आई होप ग्राफिकली अब सबको समझ आ गया है कि लिमिट का क्या मतलब होता है। आप ग्राफ प्लॉट करके देख सकते हो, बट आगे आगे जो हम लिमिट्स में क्वेश्चंस करेंगे वहां पर आप ग्राफ नहीं प्लॉट कर पाओगे, फंक्शंस आर गोइंग टू बी मोर कॉम्प्लेक्स। तो अब हम और तरीका सीखेंगे हाउ टू इवैल्यूएट द लिमिट्स। फाइन, so we are going to study the limit of these functions। ये सारे functions हैं जो आपको पढ़ने हैं कि इनकी लिमिट कैसे निकाली जा सकती है। पॉलिनॉमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, मॉड्यूलस, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। दीज आर द 6 फंक्शंस। अगर इनकी लिमिट निकालनी आपको आ गई तो मतलब आपका क्लास 12th का एक चैप्टर का एक पोर्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है? और आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हाउ टू फाइंड द लिमिट ऑफ दीज फंक्शंस। उसके लिए मैं आपके साथ एक फंक्शन डिटेल में डिस्कस करूंगी, दैट इज 3x इज द फंक्शन और इसकी लिमिट 2 पर हमें चेक करनी है। सो वी विल स्टडी इसकी लिमिट कैसे निकाली जा सकती है, मैथमेटिकली देखेंगे, ग्राफिकली देखेंगे और इसको लिखेंगे कैसे वो भी देखेंगे। तो इधर मैं 3 चीजें एक ही क्वेश्चन में डिस्कस कर रही हूँ, ध्यान से समझना, क्योंकि आगे के सारे क्वेश्चंस में हम सारे मेथड्स नहीं लगाते हैं, कोई भी एक ही मेथड लगाकर हम क्वेश्चन करेंगे, बट इसके लिए मैं आपको सारे दिखा देती हूँ। सो लेट्स सी, इसका सबसे पहले ग्राफिकल, अगर मैं ग्राफिकली देखना चाहूँ कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं तो हम वो देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहेंगे, सो 3x अगर आपके पास फंक्शन है, सो यू कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज एंड देन आप प्लॉट कर सकते हो, क्योंकि 2 पर आपको लिमिट चेक करनी है तो 2 के अराउंड हम ज्यादा देखेंगे बिहेवियर कैसा है फंक्शन का। सो फर्स्ट लेट्स सी, पहले ले लेते हैं x को 0 ही ले लेते हैं, तो y इज ऑल्सो 0 बिकॉज 3 into 0 इज गोइंग टू बी 0। देन अगर 1 होगा सो y इज गोइंग टू बी 3। देन इफ इट इज 1.9 तो इट विल कम आउट एज कितना आ जाएगा, कोई बता सकता है? 3.9. इट विल बी 5.7. 5.7, 3.9 नहीं, प्लस नहीं है ये, अनुवंशिक, राइट? सो इट विल बी 5.7। ओके, देन एट 2 अगर आप देख लोगे तो 2 पर वैल्यू इज 6 एंड 2 के राइट हैंड साइड देख लेते हैं, 2.1 लोगे तो कितना हो जाएगा? 6.1, राइट? एंड अगर 2.2 लोगे 6.3.
6.3. राइट 6.3 एंड 2.2 के लिए हो जाएगा 6.6. So these are few values. Let's plot them and see the graph. Okay. तो यहाँ पर जंप बहुत है तो मैं यहाँ पर 3 का ले रही हूँ. This is 3, this is 6. ठीक है, अभी समझ लेना, आप और पॉइंट्स लेकर बना सकते हो. और यहाँ पर मैं वैल्यूज ले लेती हूँ. This is your 1. This Ma'am, is the last one will be 9.9. अच्छा मैंने 3.3 लिया है. राइट नहीं मैंने 2.3 लिया है. सो इट्स गोइंग टू बी 2.2 लिया है. इट्स नॉट 3.3, इट्स 2.2. Oh, Okay. okay, ma'am. Okay. 2 के अराउंड देख रहे हैं बिहेवियर, तो 2 के आसपास ही रख लो सारी वैल्यूज. नाउ लेट्स प्लॉट एंड सी. ओके 0 पर फंक्शन यहाँ वैल्यू ले रहा है. जस्ट अ मिनट. ओके तो 0 पर फंक्शन वैल्यू ले रहा है इधर, तो ये हमारे पास पॉइंट है. 0 पर 0, देन 1 पर वैल्यू है 3, सो दिस इज गोइंग टू बी योर वैल्यू. Then you're moving very close to 1.9. The value is 5.7. 6 के बहुत close है, right? Then आप देख रहे हो 2 पर भी value defined है. 2 पर भी value कहाँ defined है? इधर ही defined है, and it is taking value 6. So there is no break, no jump in the graph. 2.1 पर 6.1, so थोड़ा सा ऊपर, and then 2.2 के लिए और थोड़ा सा ऊपर. So if I basically join these points, तो ये मेरा कुछ ग्राफ दिख रहा है. राइट तो अब आपको जो चेक करनी है लिमिट, वो चेक करनी है किस पॉइंट पर? आपको चेक करनी है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, 2 पर. तो कर लेते हैं 2 पर लिमिट चेक. ग्राफिकली देखकर बता सकते हो 2 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है? कोई बता सकता है? यू कैन रेज योर हैंड एंड टेल मी एट 2 द लिमिट एग्जिस्ट और नॉट. Yes, raise your hand. Yes, Meghna. Ma'am, the limit exists. Right? The limit exists, and the reason being? Ma'am, because left hand limit is equal to right hand limit, and there's also no huge jump in the graph. What is the left hand limit? Ma'am, it's 6. Left hand limit is 6 because when you're approaching 2 from the left hand side, आप देख रहे हो ग्राफ इस तरफ जा रहा है और ये इस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है. 2 पर देख रहे हैं तो 2 के पास आप देख रहे हो 6 की तरफ जा रहा है. ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x, 2 को जब राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तब भी वो इसी तरफ आ रहे हैं, तो अगेन 6. तो आप बोल रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट हमारे पास आ रहा है और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, विच इज करेक्ट. बिल्कुल ठीक है. So limit x tends to 2, f of x is equals to 6 and limit exists at x is equals to 2. Right? तो ये तो मुझे करना आता था, ग्राफिकली भी चेक करना आता था, उसको लिखना भी हमने सीख लिया था. अब एक और चीज़ यहाँ पर सीखो, दैट इज कॉल्ड H मेथड, जो बेसिकली यही एक्सप्लेन करेगा विदाउट लुकिंग एट द ग्राफ. अभी आपने क्या किया? आपने ग्राफ देखा और फिर ये चीज़ लिखी है. अब अगर आपके पास ग्राफ होगा ही नहीं फंक्शन का, स्टिल यू वांट टू राइट द लिमिट ऑफ द फंक्शन, तो हम वो कैसे देख सकते हैं? वो आप H मेथड से देखते हो. ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द लिमिट्स कैन बी डेल्ट विद H मेथड, बट हम हर क्वेश्चन नहीं करते हैं H से क्योंकि कुछ कुछ लेंदी हो जाते हैं. सो ओनली इन फ्यू केसेस यू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर दिस मेथड, जो कि मैं आपको बताऊंगी कब करना है. अब यहाँ पर समझते हैं कि H मेथड हम देखते कैसे हैं. तो सबसे पहले हम पिक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? फंक्शन मेरा है 3x और मैं लिमिट चेक कर रही हूँ एट 2 पर लिमिट चेक करने वाले हैं. तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है आई एम गोइंग टू अप्रोच 2 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड और मैं देखूंगी फंक्शन का बिहेवियर. तो ये दोनों चीजें तो एग्जैक्टली सेम है, राइट? अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, जब मैं 2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रही हूँ तो मैं बेसिकली कर क्या रही हूँ? मैं 2 में से एक बहुत छोटा सा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ. बहुत छोटा मतलब विच इज ऑलमोस्ट 0. दैट मीन्स इट इज वेरी वेरी क्लोज टू 2. तो मैंने क्या किया? x की एक बहुत क्लोज वैल्यू ले ली 2 के पास
और फिर देख लिया कि फंक्शन क्या वैल्यू अटेन कर रहा है, ऐसे ही तो निकाला है हमने। देखो जब आप उसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हो तो यू आर बेसिकली लुकिंग एट द फंक्शन वैल्यू वेरी वेरी क्लोज टू 2। तो आपने फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर देख ली, तो आपने बोला ये 6 की तरफ जा रहा है, राइट? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चली बट किस तरफ जा रहा है वो पता चल गया। सो वेरी वेरी क्लोज टू 2 फंक्शन इस तरफ जा रहा था और आपने बोल दिया कि 6 है। तो इस कॉन्सेप्ट में हुआ क्या है दैट यू आर सब्ट्रैक्टिंग अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर, जो कि मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लूंगी h से। सो आई एम सब्ट्रैक्टिंग अ वेरी स्मॉल नंबर फ्रॉम 2, तो वो क्या हो गया 2 माइनस h। सो बेसिकली ये वाला डॉट जो है, ये वाला डॉट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2 माइनस h को। और फिर मैं क्या कर रही हूँ, मैं फंक्शन की वैल्यू देख रही हूँ कि इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होने वाली है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, वी विल राइट इट एज लिमिट ऑफ द फंक्शन। कब चेक कर रही हूँ मैं फंक्शन की वैल्यू, इस पॉइंट पर, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2 चेक कर रहे हैं। तो 2 माइनस h अगर मैं फंक्शन में पुट कर दूं तो मैं देख रही हूँ कि फंक्शन की क्या वैल्यू होने वाली है। वेयर दिस h मीन्स व्हाट, दिस h इज अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर। तो वेरी वेरी स्मॉल नंबर का मतलब इट इज ऑलमोस्ट जीरो, इतना छोटा नंबर है, 0.000000001, मतलब बहुत ही छोटा नंबर है। सो आई विल राइट दैट दिस h इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0। तो मैंने क्या किया, जो मेरा क्वेश्चन था कि 2 को जब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें तो फंक्शन किस तरफ जा रहा है, तो उसका ये भी मतलब है कि मैं फंक्शन की वैल्यू चेक कर रही हूँ वेरी वेरी क्लोज टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, वेयर दिस h जो मैंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है इज अ वेरी स्मॉल नंबर, राइट? अब f ऑफ 2 माइनस h का क्या मतलब हो गया, f ऑफ 2 माइनस h का मतलब है मैं फंक्शन की वैल्यू 2 माइनस h पर चेक कर रही हूँ। तो मैं देख लेती हूँ, क्योंकि मेरा फंक्शन डिफाइंड कैसे है, 3x डिफाइंड है, माई फंक्शन इज 3x। तो अगर मैं x की जगह पर 2 माइनस h पुट करती हूँ, सो माई वैल्यू इज गोइंग टू बी 6 माइनस 3h। सो दिस बिकम्स लिमिट h टेंड्स टू 0 6 माइनस 3h। आई हैव जस्ट इवेल्युएटेड द फंक्शन और मैंने कुछ नहीं किया है, अगर आप देखोगे तो, राइट? एंड फाइनली क्योंकि ये h तो 0 की तरफ जा रहा है, तो क्योंकि मैं लिमिट निकाल रही हूँ, तो अल्टीमेटली जब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी तो मैं इस h को 0 पुट करूंगी, जहां पर भी h जा रहा है हमेशा 0 की तरफ जाएगा। सो यू विल सब्स्टिट्यूट इट हियर एंड यू विल सी द वैल्यू एज 6। सो बेसिकली इस h को 0 रखने का यहाँ मतलब ये हो गया कि वो बहुत छोटा नंबर है, इट इज नॉट 0, इट इज टेंडिंग टू 0। तो अगर आप बहुत छोटा नंबर यहाँ पर सब मल्टीप्लाई करके करते इसको सब्ट्रैक्ट, तो मतलब वो 6 की तरफ ही जा रहा होता, इट वुड हैव बीन वेरी वेरी क्लोज टू 6, 5.999 5.77 कुछ ऐसा आ रहा होता, मतलब इट इज स्टिल टेंडिंग टू 6। तो अब आप देख सकते हो जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी वही यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई ना। एंड इसके लिए मुझे कोई ग्राफ की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने सीधा h मेथड की हेल्प से ये क्वेश्चन कर लिया। ओनली आई नीडेड द फंक्शन एंड जिस पॉइंट पर मैं वैल्यू निकाल रही थी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, बाय h मेथड, राइट? ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट भी वैल्यूएट कर सकते हैं, तो मैं आपको राइट हैंड लिमिट भी करके दिखाती हूँ। अगर आप राइट हैंड लिमिट देखोगे तो उसका क्या मतलब है, आप फंक्शन को अप्रोच करोगे, आप पॉइंट को अप्रोच करोगे फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब देखो जब राइट हैंड साइड की बात हो रही है तो आप क्या कर रहे हो, 2 में एक छोटा सा नंबर ऐड कर रहे हो, ना कि सब्ट्रैक्ट, क्योंकि राइट हैंड साइड ऑफ 2 कैसे मूव करेंगे, व्हेन यू आर एडिंग अ नंबर। अब वो छोटा सा नंबर क्या है, अगेन h ही है। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, मैं फंक्शन की वैल्यू चेक कर लूंगी एट दिस पॉइंट, दैट मीन्स लिमिट ऑफ द फंक्शन एट 2 प्लस h। एंड क्योंकि अब मैंने h इंट्रोड्यूस कर दिया इंस्टेड ऑफ x, तो मुझे डिफाइन करना होगा ये h क्या है। सो h इज अ वेरी स्मॉल नंबर, इट इज टेंडिंग टू 0। एंड f ऑफ 2 प्लस h का क्या मतलब है, यू आर बेसिकली फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2 प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 अगर आप पुट करते हो, सो दिस बिकम्स 6 प्लस 3h। एंड फाइनली
क्योंकि मुझे लिमिट निकालनी है, मुझे देखना है क्या पॉइंट आएगा, तो मैं इस h को 0 पुट कर दूंगी। तो ये कितना आ गया? दिस अगेन कम्स आउट एट 6. सो दिस इज योर लिमिट ऑफ द फंक्शन विदाउट नोइंग द ग्राफ ऑफ द फंक्शन. हमने सीधा क्या किया? h मेथड यूज किया टू इवैल्यूएट द लिमिट ऑफ द फंक्शन एंड वी कुड सी द लिमिट इज द सेम जो हमें मिल रही है या नहीं? Yes, ma'am. राइट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ आ गया है कैसे करना होता है h मेथड? Yes. राइट. अब इधर एक और चीज इधर ही नोटिस करो कि ये जो मैंने सब कुछ किया है h मेथड लगाकर या ग्राफिकली, इसमें अगर मैं फंक्शन को देखूं, फंक्शन इज 3x, राइट? देखो, फंक्शन इज 3x, और अगर मुझे 2 पर लिमिट निकालनी है, अगर मुझे 2 पर लिमिट निकालनी है और मैं डायरेक्टली इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो क्या कुछ अलग आएगा? No, अगर ma'am. It will. function is this, if you directly substitute this point, so क्या आ जाएगा? 3 into 2, which is what? Which is 6 again, है या नहीं? Yes, ma'am. है ना? तो जब भी आपके पास ऐसा फंक्शन है which is a polynomial function, polynomial function कैसे होते हैं? किस फॉर्म में होते हैं polynomial function? कोई बता सकता है polynomial function कैसा होता है? polynomial function, quadratic function is a polynomial function or not? है या नहीं? Yes, ma'am. है ना? तो पॉलिनोमियल फंक्शन का हमारे पास स्पेसिफिक फॉर्म जो हम देखते हैं वो ये होता है, दैट इज an(x to the power n, an-1x to the power n-1 डॉट 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 a2x square a1x plus a0, where these a0, a1, a2 all these are constants. ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, बट द पावर्स ऑफ x जो हमारे पास होती हैं, दोज आर ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है? वो कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, रेडिकल नहीं हो सकता. दे आर ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. सो दैट इज द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन. तो अगर मैं आपको एक स्पेसिफिक एग्जांपल दूं, 2x plus 1, this is a polynomial. x square plus 2x plus 1, this is a polynomial. X cube is a polynomial. Then x to the power n plus 2x plus 3, this is again a polynomial. All these functions जहां पर आप देख रहे हो x की power is a non-negative integer and you just have constants addition में या multiplication में, so all these are your polynomial function. तो जब भी आपको polynomial function की लिमिट निकालनी है, तो क्योंकि अभी मैंने क्वेश्चन में देखा ग्राफिकली भी वही आ रही है, h मेथड से भी वही आ रही है और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से भी वही आ रही है, ऑल्दो लॉजिक बिहाइंड फाइंडिंग द लिमिट इज दिस, बट अगर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन में देखना चाहूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, अगर मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, लिमिट इज द सेम. So for polynomial function, you never have to use h method or you have to plot the graph. You can directly find the limit of the function by directly substituting the point into the function. So this is how we find out the limit of a polynomial function. Is it clear? जब भी आप कोई भी function deal करोगे, the first step is always going to be you directly substitute that point into the function. अगर आपका एक finite number आ रहा है, एक real number आ गया, so the limit is going to be the same. तो limit different. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसको 2 मिनट देखो, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो. You see the graph, you see how I have written this or h method. अगर h method में कोई भी confusion है, ask me right now. Yes, any doubt? किसी को भी कुछ भी डाउट है इसमें, पूछना है h मेथड में कुछ भी? No, ma'am. Okay, so if it is clear, so I will show you 2 more questions जहां पर हम लिमिट निकाल रहे हैं.
एंड विल डील इट डायरेक्टली नाउ. हम ग्राफ्स नहीं प्लॉट करेंगे, ठीक है? ओके, ट्राई दिस क्वेश्चन. थोड़ा पीछे नॉइज है तो आप एक बार ये ट्राई करो एंड देन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या होगा. जस्ट ट्राई दिस. लिमिट निकालनी है इस फंक्शन की. व्हाट डू यू थिंक द लिमिट ऑफ द फंक्शन विल बी? Ma'am, we should do it by H method or direct substitution. Okay, so whenever a question is given to you, you will first use direct substitution. अगर एक finite number आ रहा है, the limit is that number. अगर नहीं आता है, then I'll tell you the other methods to do it. ठीक है? तो अभी पहले direct substitution से करो. Okay, ma'am. बताओ. Anybody? और कोई? किसी और ने किया है? और बच्चे ट्राई करो, बताओ. लिमिट बतानी है. बताओ निष्ठा. Ma'am, 12. It's coming out as 12. So the first thing I told you is जब भी लिमिट निकालनी है you will directly substitute and see. तो अगर आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हो तो देखो 3 into 3 plus 1 कर दिया. 3 into 4 gives you 12. This is going to be a limit क्योंकि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आ गया. Also if you just open this function, आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखा देती हूँ. If you just open this function, it will be x square plus x, which is a polynomial function. Whenever you are finding the limit of a polynomial function, we always use direct substitution. एक चीज़ ये यहाँ से आती है. Although हर question में आप पहले direct substitute करोगे, but अगर एक polynomial function है ज़रूर direct substitution से limit आएगी ही आएगी, क्योंकि polynomial function में कोई break नहीं होता है. राइट उसका ग्राफ हमेशा स्मूथ जाएगा. इट विल बी अ कर्व और हमेशा स्मूथ आपके पास कर्व होता है. तो हमेशा उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी और आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से निकाल सकते हो. कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. ओके. Yes. और इसी को अगर मैं आपको क्विकली दिखा दूं, एच मेथड से भी करते तो सेम आता. तो आप देखो लिमिट x टेंड्स टू 3. दिस इज माय फंक्शन, राइट. मैं क्या करूंगी, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रही हूँ तो मैं फंक्शन में एक छोटा सा नंबर माइनस कर रही हूँ. तो 3 माइनस एच, लेफ्ट ऑफ 3 में देख रही हूँ एंड दिस h इज टेंडिंग टू 0. अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड इफ यू सब्स्टिट्यूट दिस 3 माइनस h इनटू द फंक्शन, तो यहाँ पर कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी. ऑल्दो आंसर वही आने वाला है बट कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है. तो दिस बिकम्स लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 minus h, and this is 4 minus h. And when you open this up, 12 minus 3h minus 7h, and this is plus h square. So हमेशा ये जो h 0 पुट करते हैं ये लास्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूट करते हैं, कभी भी पहले स्टेप में नहीं करोगे, अदरवाइज इट विल हैव नो सेंस. फंक्शन में ये सब कुछ करने का कोई फायदा ही नहीं होगा. तो हमेशा जब सब कुछ कर लोगे सिंप्लीफिकेशन वगैरह, देन यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ h. नाउ यू सी इफ यू सब्स्टिट्यूट h as 0, it is still coming out as 12. सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज 12, वैसे ही राइट हैंड लिमिट निकालते 12 ही आती. बट यू सी कितने सारे एक्स्ट्रा, और हम देख रहे हैं
कि अगर मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर लूंगी तब भी सेम ही आएगा. सो वेन एवर यू आर डीलिंग विद अ पॉलिनॉमियल फंक्शन, नेवर यूज एच मेथड. एच मेथड पॉलिनॉमियल फंक्शन के लिए यूज नहीं करेंगे. ठीक है, हेल्पफुल नहीं है. ऑल्दो लिमिट सेम ही आएगी हर क्वेश्चन में. अगर एच मेथड लगा दोगे लिमिट जरूर सेम आएगी, बट इट विल बी वेरी लेंथी. सो फॉर polynomial function always use direct substitution. Clear? एक और क्वेश्चन करो. ये आपने अभी किया है. ओके, जस्ट इससे पहले एक हम जल्दी से देख लेते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स. बहुत छोटी सी चीज है. अगर जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है फंक्शंस को कैसे ऐड करना है, नंबर्स को कैसे ऐड करना है, ऐसे ही लिमिट्स में एडिंग पॉसिबल है या नहीं वो हम यहाँ पर देख रहे हैं. तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, अगर एफ और जी आपके पास दो फंक्शंस हैं जिनकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एट पॉइंट ए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए तभी अलजेब्रा ऑफ लिमिट वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. ये दोनों लिमिट इस पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रही हैं. देन अगर आप एफ एक्स प्लस जी एक्स एड करके लिमिट निकालते हो उस पॉइंट पर, तो इट विल बी सेम एज लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स. मतलब लेट्स से एफ एक्स फंक्शन है 2 एंड जी एक्स फंक्शन है 3x और मैं लिमिट चेक कर रही हूँ एट 2. तो आप सबसे पहले देख लो लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ ऑफ एक्स कितना है, कोई बता सकता है? 2, राइट. यही है कांस्टेंट है. कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट हमेशा क्या होती है? वही नंबर, कोई चेंज नहीं आने वाला है. एंड ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 2 g ऑफ x अगर आप देखते हो विच इज 3x, कितनी हो जाएगी लिमिट हो जाएगी 6. वेरी गुड. तो दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. नाउ इफ आई यूज द अलजेब्रा ऑफ लिमिट एडिशन वाला, तो देखते हैं ये वर्क कर रहा है या नहीं. सो इफ यू सी लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स मतलब 2 प्लस 3x, और मैं इसकी लिमिट निकालती हूँ, बताओगे क्या होगा? कितनी आएगी लिमिट? 2 प्लस 3x. क्या करेंगे? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन. तो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 इज 8. तो आपने देखा ये चीज आ गई 8. अब राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं. राइट हैंड साइड इज 2 प्लस 6 विच इज ऑल्सो 8. दोनों सेम है या नहीं? राइट. So this is how algebra of limit works, but you will have to first check whether the limit exists or not. अगर ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो ये algebra जो भी लिखा हुआ है ये वर्क नहीं करेगा. Similarly for subtraction it works. आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो अलग अलग लिमिट लेकर. मल्टीप्लीकेशन में दोनों फंक्शन को पहले मल्टीप्लाई करके लिमिट निकाल लो या अलग अलग लिमिट निकाल कर मल्टीप्लाई करो, सेम ही चीज आएगी. एंड देन डिविजन ऑल्सो, डिवाइड करके लिमिट निकाल लो या फिर अलग अलग लिमिट रखकर आप डिवाइड कर दो तब भी ये सेम आएगी. सो दिस इज अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स. ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे. अलग अलग फंक्शंस आप लोग डील करोगे और फिर हम उसकी लिमिट्स निकालते जाएंगे. ठीक है, तो अभी आपने क्या देखा? आपने सबसे पहले देख लिया पॉलिनॉमियल फंक्शन जिसमें मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे. बट हियर you can see this is not a polynomial function. Is this a polynomial function? Can you see the first question? Is this a polynomial function? No. कैसा function है? कैसा function है? fx upon gx कैसा function होता है? Rational function, right. So रैशनल फंक्शन है तो अब देखते हैं इसको कैसे डील करेंगे. सबसे पहली चीज मैंने आपको बता दी है कि पॉलिनॉमियल के लिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन और कोई भी फंक्शन आ जाए फर्स्ट स्टेप तो हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ही होगा. अगर वर्क नहीं करेगा फिर नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे, बिकॉज रैशनल फंक्शन भी पॉलिनॉमियल फंक्शन से ही बना है. न्यूमरेटर इज अ पॉलिनॉमियल, डिनोमिनेटर इज ऑल्सो अ पॉलिनॉमियल. सो डायरेक्टली आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे. सो 1 square plus 1, 1 plus 100, this becomes 2 upon 101, right. लिमिट आ रही है, एक नंबर आ रहा है तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी द लिमिट. अगर आप एच मेथड से भी इसको करके देखोगे द सेम थिंग इज गोइंग टू कम. सो रैशनल फंक्शन में भी फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन. ठीक है,
ट्राई द सेकेंड क्वेश्चन, इसमें करो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन एंड टेल मी क्या आ रहा है, बताओ। सेकेंड क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हो तो क्या आता है? मैम 0 आ रहा है। 0 आ रहा है? जी मैम। मैम 0 इट आ विल बी रहा है, इंफिनिटी। इन्फिनिटी आ रहा है, ओके। और किसी ने एवेल्युएट किया है तो okay, if you directly substitute, this becomes 2 cube. Okay, तो यहाँ पर देख लो जिनका 0 आया है एक बार, 4 minus 4. When I evaluate this is 8 minus 16 plus 8 upon 0, and this is 8 plus 8 minus 16 which is 0 by 0. तो जिन बच्चों ने बोला कि ये 0 आ रहा है, सो पहले स्टेटमेंट ये गलत है, दैट दिस इज नॉट 0. 0 by 0 is not equals to 0. ठीक है? And similarly 0 by 0 is not equals to infinity. ये दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं. इसको बोला जाता है whenever you get 0 by 0 form, it is called indeterminate form. मतलब आप डिटर्मिन ही नहीं कर सकती कि ये क्या आ रहा है, क्योंकि बहुत छोटा सा प्रूफ है, मैं आपको दिखा देती हूँ. देखो, अगर 0 मैं लिखूं, 0 को मैं लिखूं 1 इंटू 0 तो 0 आएगा. 0 को मैं लिखूं 2 इंटू 0, 0 आएगा. 0 को लिखेंगे 3 इंटू 0, 0 आ रहा है. बेसिकली 0 बाई 0 फर्स्ट वाले से 1 आ रहा है, 0 बाई 0 सेकेंड वाले से 2 आ रहा है, 0 बाई 0 थर्ड वाले से 3 आ रहा है. सो वैल्यू तो नोन ही नहीं है ना, आप बता ही नहीं सकते क्या आ रहा है. सो हमेशा जब भी आपके पास आएगा 0 बाई 0 फॉर्म, इट इज कॉल्ड एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म. अगर 0 बाई 0 को आप 0 बोल रहे हो तो 0 तो एक लिमिट हो गई ना, रियल नंबर है 0, राइट? सो यहाँ पर 0 नहीं आया. अगर आपके पास 0/1 आता तो वो ठीक है, दैट विल बी 0, आप उसको 0 बोल सकते हो. बट अगर कभी भी 0 बाय 0, न्यूमरेटर इज ऑल्सो 0, डिनोमिनेटर इज ऑल्सो 0, देन इट इज नॉट योर 0 और इंफिनिटी, इट इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म. मैं आपको लिख देती हूँ इसको, यहाँ पर पेन वर्क नहीं कर रहा है. दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये माइंड में रखना सब लोग अपने, क्योंकि अब आप बहुत सारे क्वेश्चंस में देखोगे जो भी लिमिट के क्वेश्चंस करते हैं, यू विल मोस्टली गेट इन द फर्स्ट स्टेप 0 बाय 0. सो उसमें हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि हम डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पर आ रहा है. तो अब लिमिट कैसे निकालें? क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही नहीं? तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, मैंने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करा, और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब है मैं फंक्शन की वैल्यू चेक कर रही हूँ उस पॉइंट पर. बट फंक्शन की वैल्यू अगर एग्जिस्ट नहीं करती एक पॉइंट पर, तो क्या उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती? जैसे कि इधर 1 की वैल्यू इधर डिफाइंड नहीं थी, बट क्या इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही थी? तो लिमिट तो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही थी. इस केस में वैल्यू डिफाइंड थी, लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी. तो यहाँ पर हमने क्वेश्चंस में देखे थे एग्जाम्पल्स जहां पर एक पॉइंट पर फंक्शन शायद डिफाइंड नहीं हो, बट लिमिट एग्जिस्ट कर जाती थी. तो अगर फर्स्ट स्टेप में आप पुट करते हो तो उसका मतलब है लिमिट और वैल्यू ऑलमोस्ट दोनों सेम ही आ रही हैं, तो लिमिट तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट कर जाएगी. बट अगर वैल्यू एक फॉर्म नहीं आ रही है आपके पास, एफ की वैल्यू नहीं आ रही है, तो हम ये नहीं कह सकते कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है. लिमिट तब भी एग्जिस्ट कर सकती है. तो फर्स्ट स्टेप में इंडिटर्मिनेट फॉर्म आने का ये मतलब होता है कि लिमिट स्टिल कैन एग्जिस्ट. सो नाउ हाउ टू फाइंड आउट द लिमिट ऑफ द फंक्शन. तो अब देखते हैं कि लिमिट कैसे निकालेंगे. बिकॉज फर्स्ट डिड नॉट वर्क, आप जाओगे सेकेंड स्टेप पर, विच इज you will simplify the function. आप इसको factorize करोगे और फिर इसको simplify करोगे, and then you will check whether the limit exists or not. तो मैं क्या कर सकती हूँ, I can see x is common in the numerator, so this becomes x square minus 4x plus 4, and नीचे मुझे दिख रहा है x square minus 2 का square. So if I just simplify this further, ये बन गया x minus 2 का whole square, and this is a square minus b square, a plus b, a minus b. क्या किया जा सकता है,
यू कैन कैंसिल आउट द फैक्टर्स जो भी आपके पास है। अब देखो, क्योंकि जैसे ही आपने फैक्टर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट रिमूव किया, एंड इफ आई नाउ सब्सटीट्यूट द लिमिट, 2 पुट करती हूँ, सो 2 minus 2 and this is 2 plus 2, so you can see 2 into 0 upon 4, which is 0 upon 4, 0 upon 4, which means limit पर आ रही है और वो कितना, is 0। सो इस केस में हमने देखा फर्स्ट स्टेप में ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म ले रहा था, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, वैल्यू हमारे पास नहीं आ रही थी। तो हमने क्या किया, टू फाइंड द लिमिट इन रैशनल फंक्शन, द सेकेंड स्टेप हमने उसको फैक्टराइज किया एंड देन लिमिट चेक की। अगर एक रियल नंबर आ जाता है तो वही उसकी लिमिट हो जाएगी, अगर अभी भी नहीं आता, इन्फिनिटी आ जाता है, नॉट डिफाइंड आ जाता है, सो नॉट डिफाइंड हम बोल देंगे। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। मैम तो ये हमेशा जरूरी होगा जब लाइक ऐसे कुछ मतलब हम डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो हमें हमेशा फैक्टराइज करके चेक करना पड़ेगा। नॉट इन डिनोमिनेटर, देखो ऐसा भी हो सकता है यू आर गेटिंग 1/0, तो इस केस में तो ये नॉट डिफाइंड ही है, आप इसको सीधा लिखोगे नॉट डिफाइंड, तो लिमिट वहां पर डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर 0/0, या एक और फॉर्म में बता देती हूँ, ये आएगा या ये इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, मोस्टली ये आपके सिलेबस में अभी नहीं आएगा, आप बाद में जाकर पढ़ोगे, यही फॉर्म देखोगे 0/0। अगर न्यूमरेटर भी 0 आ गया, डिनोमिनेटर भी 0 आ गया, then in rational function the next step will always be to factorize the function and find the limit. Yes, यही होगा। ओके मैम। ठीक है, ओके। अब आपको समझ आ गया है पॉलिनोमियल फंक्शन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, रैशनल में फर्स्ट स्टेप इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, वर्क नहीं कर रहा है तो फैक्टराइज करेंगे, राइट? क्लियर है सबको इतना? तो हम पहले रैशनल फंक्शंस के ही कुछ और क्वेश्चंस करके देखेंगे। करो ये क्वेश्चन, ट्राई दिस क्वेश्चन। बताओ कितनी लिमिट आती है? कोई बताएगा लिमिट से अप्रोच, ये बता दो निकाल रहे हो लिमिट। मैम पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से देखेंगे। ओके, क्या आ रहा है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से? कोई बता सकता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से क्या बन रहा है? मैम it is coming as -1/0 -1/0। ओके, -1/0 अगर फर्स्ट में पुट कर रहे हो एंड दूसरे में अगर पुट कर रहे हो 0 आ, ये भी 1/0 आ रहा है। अब एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट करो, देखो हमने अभी अलजेब्रा ऑफ लिमिट पढ़ा, मैंने आपको क्या बताया था कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट तभी वर्क करेगा जब दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेंगी। तो ये नॉट डिफाइंड हो गया, ये नॉट डिफाइंड हो गया, तो किसी भी केस में आप इनको सेपरेट नहीं कर पाओगे कि फर्स्ट वाले को लिख दिया और फिर माइनस सेकेंड वाला लिख दिया, ऐसा नहीं कर सकते इस केस में। क्यों? बिकॉज दिस फर्स्ट लिमिट इज ऑल्सो नॉट एग्जिस्टिंग और सेकेंड भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, राइट? और आपने जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया है तो नॉट डिफाइंड आ रहा है, ये आ ही नहीं रही, और हम करेंगे कर नहीं सकते हैं इसमें लिमिट। तो अब इसमें भी मेरे को देखना होगा कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो लिमिट जरूर एग्जिस्ट कर सकती है ऐसे केस में, क्योंकि मैं यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, वो नॉट डिफाइंड आ रहा है, राइट? और फंक्शन अभी मेरे पास दो फंक्शन है, या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, एक सिंगल फंक्शन नहीं है कि 1/, यहाँ पर फंक्शन सब्ट्रैक्शन या एडिशन में है। तो हो सकता है इन दोनों का जब मैं कॉम्बिनेशन देखूं, इनको सिंप्लीफाई करूं, तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। तो मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट स्टेप इज, बिकॉज ये भी रैशनल फंक्शन ही है, सो यू विल सिंप्लीफाई दिस फंक्शन फर्स्ट। सिंप्लीफिकेशन का मतलब वही है कि आप यहाँ पर अगर इसके फैक्टर्स कर रहे हो, कितना आ रहा है?
इधर पहले x कॉमन ले लो, x स्क्वायर मैम एक कितना आ रहा है? it will be 2 and 1 minus 2x and minus 1x. -2 and 1, minus 1. right? -1. Yes, ma'am. x -2, x -1, ये ठीक लिखा है मैंने? माइनस प्लस, ओके गड़बड़ है। दिस इज फैक्टर करके बताओ, ये आ रहा है राइट? ये है फैक्टर्स, दीज आर योर फैक्टर्स। सो LCM here, एंड अब इधर आप फैक्टर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, x -2 होल स्क्वायर, एंड दिस रिमेन्स द सेम। आपने LCM ले लिया एंड जस्ट ओपन इट, x स्क्वायर प्लस 4 -4x -1 अपॉन, या फिर आप सीधा कर सकते हो क्योंकि ये फॉर्म यहाँ पर 1 है तो मैं इधर ये भी लगा सकती हूँ, ज्यादा सिंपल होगा। दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, न्यूमरेटर में लगा सकते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जल्दी हो जाएगा, फैक्टर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो a माइनस बी, a प्लस बी, एंड नीचे आपके पास ये रहेगा, राइट? अभी कुछ नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अभी तो कुछ कैंसिल आउट ही नहीं हुआ है, तो कहीं पर भी अगर आपने 1 पुट किया तो वो वही आने वाला है आपके पास, नॉट डिफाइंड ही रहेगा, 0/0 फॉर्म ही देखोगे आप। तो आप क्या करोगे, जब तक पूरे फैक्टर्स बनाकर आप कुछ सिंप्लीफाई नहीं करते, फैक्टराइज करके कुछ कैंसिल आउट नहीं करते, तब तक आप लिमिट सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे। लिमिट हमेशा लास्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूट होगी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो, आप एक फैक्टर कैंसिल आउट कर पा रहे हो, x -1 इज कैंसल्ड, और इसी की वजह से ये नॉट डिफाइंड बन रहा था, 0 हमारे पास आ रहा था डिनोमिनेटर में। नाउ वी कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट, तो 1 - 3 इज -2 and this becomes 1 into 1 - 2, so -2 upon -1 which becomes 2. This is your limit. आ रहा है 2 सबके पास? देखो इस क्वेश्चन को, Yes, ma'am. राइट? तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज क्या थी, क्योंकि दो फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जब भी दिखेंगे तो आप डायरेक्ट लिमिट मत सब्स्टिट्यूट करो, क्योंकि वो कभी भी होल्ड करेगा ही नहीं। जो फर्स्ट एल्जेब्रा ऑफ लिमिट हमने पढ़ा है वो किसके लिए होल्ड करता है? इट विल ओनली होल्ड व्हेन बोथ द लिमिट एग्जिस्ट, और यहाँ पर तो दोनों लिमिट थी, इसीलिए हमें ये सब करना पड़ा। तो अगेन दिस वाज अ रैशनल फंक्शन, फॉर इट लिमिट टू एग्जिस्ट वी हैव सिंप्लीफाइड द फंक्शन और फैक्टराइज्ड इट, एंड देन उसके बाद लिमिट पुट की। एक लास्ट क्वेश्चन और करके मुझे दिखाओ rational में, do this question, limit x tends to 2, x to the power 4 minus 16 upon x minus 2, find out the limit of this function. yes, कैसे करेंगे, कौन बताना चाहता है? yes निष्ठा। Ma'am, we can simplify it as ma'am x square plus 4 into square minus 4. Ma'am, x raised to power minus x. पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया है। Yes, ma'am. Ma'am, उसका आंसर ma'am it will be ma'am 0/0, which will be indeterminate. इंडिटर्मिनेंट नहीं, डिटर्मिनेंट अलग है, Form. इंडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है? ओके, Determinate तो form.
राइट तो हमने पहले लिख लिया इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म। अब क्योंकि ये रैशनल फंक्शन दिख रहा है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से नहीं हुआ है, नेक्स्ट स्टेप इज टू फैक्टराइज इट। अब जो आप बोल रहे हो बिल्कुल करेक्ट है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, वी कैन राइट इट एज x स्क्वायर का पावर 2 एंड दिस कैन बी रिटन एज 4 स्क्वायर। तो ऊपर आपको दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड नाउ यू कैन अप्लाई a प्लस बी एंड a माइनस बी, राइट, एंड नीचे एज इट इज। नाउ अगेन फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कैसे? मैम x square minus 4 A can be square written as minus B x square. plus 2 into x minus 2. राइट सो फर्स्ट वाला तो हम एज इट इज रख सकते हैं, बट दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अगेन वही लगा सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी। सो लिमिट x टेंड्स टू 2, हर जगह लिमिट लिखना जरूरी है। अगर लिमिट के क्वेश्चन में ये लिमिट नहीं लिखा ना, 0 मार्क्स मिलेंगे, चाहे बाकी सब कुछ बिल्कुल करेक्ट हो, ठीक है? दिस इज x प्लस 2 x माइनस 2 एंड दिस इज अपॉन x माइनस 2। सो अगर आप देखोगे ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो एक फैक्टर कैंसिल आउट होने से ही लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। अगर नहीं करेगी तो फिर वही आंसर है, बट कर जाती है। सो दिस इज योर 8 into 4, 32. दिस विल बी योर आंसर। आएगा? Yes, sir. राइट सो दिस इज योर लिमिट्स। आज हमने क्या क्या किया है जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं।